जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम से मैं आए सभी जनों को अपनी वंदना पेश करता हूँ। खास तौर से फिर से 2 हफ्ते बाद प्रभु परमेश्वर ने हम सबको एकत्रित होने का एक मौका दिया। मैं ये जानकर प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में परमेश्वर ने हमें चलाया। प्रभु की खुदावंद की बड़ी कृपा और करुणा हम सब पे बनी रही। आज भी जो हम चंद समय यहाँ पे बिताएंगे, इस प्रकार अपने मन में प्रार्थना करें कि प्रभु हमसे बात करेगा। जो गीत गाएंगे, जो वचन यहाँ पर बोला जाएगा, प्रभु उन सब से हमारे बीच में कार्य करेगा और हमसे बात करेगा। आइए अपने आज के फेलोशिप को स्टार्ट करें। एंड स्टार्ट करने के लिए मैं इस समय डैनियल अंकल को आगे बुलाऊंगा। वो अभी प्रेयर करके अपना आज का फेलोशिप, आज की जो मंडली है, इसकी शुरुआत करेंगे यहाँ पे। Let's bow our head in silence and give thanks to the Lord. Father, we come before you this evening because your promise is there. Come unto me, all who are weary and heavy laden, I will give you rest. For my yoke is easy and my burden is light. St. Peter says, casting all your care upon him, for he cares for us. Yes, Father, we bring our worries and cares before you, and as we spend few minutes in silence, Father, speak to us this evening, that our heart be renewed as we trust in you, Father, and as we sing and give praise to your name, Father, you'll speak to us. We'll be blessed this evening. All those who are here, Father, the preachers and the congregation will be blessed this evening. And Father, we pray for divine healing into our lives also. Guide us and lead us, Father, through this worship. Ask in thy precious name. Amen. At this moment, अभी कुछ हम गीत गाएंगे। जो choir है चर्च में, जो जिन लोगों को नियुक्त किया है, please come forward and we'll be singing few songs and we would be praising God. Praise God. जो लोग खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएं, जो लोग खड़े हो सकते हैं, जो खड़े नहीं हो सकते वो बैठे रहिए. If you can stand up, please stand up. Praise God. I'm very excited today because when I grew up, I used to sing this whole Zabur and everything. Cassettes. Remember those days? वो जो हम लोग कैसेट में सुनते थे. तो आज हमारे भाई हमारे बीच में हारमोनियम के साथ है, वो गाएंगे. इसलिए I'm also looking forward to that. We'll have a blessed time. But before that, we are going to spend few moments in just singing praises unto the name of the Lord. Amen. Praise God. I don't know about you, but in this church, many people were going through times of sickness last week, and still. So this morning, even though there were people here, but there were many people who are missing. But I thank God for the strength He has given us this evening to be in the house of the Lord. Amen. प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ. The Bible says in Psalms that as a deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. This evening हम अपने आप को जरा परख के देखें, क्या हमारे अंदर खुदा के लिए वो प्यास, वो प्रेम हमारे अंदर है कि नहीं. Praise God. Amen. आइए हम प्रभु की चरणों पर अपने आप को समर्पण करें. कि आंखों को बंद कीजिए. Look, if you can close your eyes, you can close your eyes. Let's spend a few moments in just thanking the Lord for who He is. Shukro Khuda, Shukro. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. Desire and I long to worship thee. You alone are my heart's desire and I long to worship thee. You alone are my strength.
प्रभु तेरे चरणों से हम कहाँ जा सकेंगे प्रभु। हालेलुया, हमें हमारे जीवन में सब कुछ आपने प्रदान किया है पिता परमेश्वर। Hallelujah. Help us to seek you more than anything else in our life, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Jesus. हम एक गीत और गाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। Praise God. कितने लोगों के पास साज लेकर आए हैं आप लोग? अब लोग अपने को इंस्ट्रूमेंट अभी लेके नहीं आया, तो परमेश्वर ने हम सबको एक डिफॉल्ट इंस्ट्रूमेंट दिया। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? जानते हैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ताली। 10 stringed instrument, that is our hands. So उसको बजाने के लिए कोई आपको टून या स्केल की जरूरत नहीं है। थोड़ा बिल्कुल ऑफ बीट मत जाना, मतलब परमेश्वर ने ये हमें दिया है कि हम क्या ताली हम बजाकर प्रभु की क्या कर सकते हैं, स्तुति प्रशंसा कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। संसार की है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको सुनाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। खजाना है एक बात का, तापा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना एक पाक मोहब्बत का, तापा न सका, सागर है तू उल्फत का। से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। आमीन। प्रभु तेरी शुक्र हो, हालेलुया। गीत सुनाएंगे, ना देख सका हमको तू में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका तू, आमीन, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में है
चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही, संसार के इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। आमेन जीसस। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई सागर है तू उल्फत का। एक पाक मोहब्बत का पा न सका कोई सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। आमेन। आवाज उठाएंगे। हालेलुया। प्रभु तेरी शुक्र हो खुदावन, तेरी बरकत हो, तेरी रहमत के लिए धन्यवाद प्रभु। वी प्रेज यू फॉर एवरीथिंग लॉर्ड। हालेलुया। यू कुड नॉट सी अस इन द पिट ऑफ सिन बट यू रेस्क्यूड अस। आप देख नहीं सके प्रभु हमें पाप के सागर में, और आप बनकर मनुष्य इस दुनिया में आया और हमें छुड़ाया। We thank you for the deliverance, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you for saving us, Lord. Hallelujah. Thank you for worship. Thank you for the fact, oh Lord, that hallelujah, unworthy people like us, you brought us closer. हम तो नालायक थे प्रभु खुदावंद, हम तो आपसे बिल्कुल दूर थे खुदावंद, लेकिन आपने हमें आपके नजदीक में लेकर आया। इसलिए हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। ये शाम प्रभु आप आशीष और बरकत देना, आगे की सेवगाई में तेरी हुजूरी हम महसूस कर पाएं पिता परमेश्वर। Lord, help us to experience your presence here tonight. We thank you in Jesus' name we pray. Amen. Reading it in a responsive way. First verse मैं and second verse आप पढ़ना, in that order will go. भजन संहिता 27, Psalms 27. Start. हे यहोवा, तू मेरी ज्योति और मेरा उद्धार करता है, मुझे तो किसी से भी नहीं डरना चाहिए। यहोवा मेरे जीवन के लिए सुरक्षित स्थान है, सो मैं किसी भी व्यक्ति से नहीं डरूंगा। When evildoers come against me to devour my flesh, my foes and my enemies stumbled and fell. पर चाहे पूरी सेना मुझको घेर ले, मैं नहीं डरूंगा। चाहे युद्ध क्षेत्र में मुझ पर लोग प्रहार करें, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मैं यहोवा पर भरोसा करता हूँ। I have asked one thing from the Lord. It is what I desire, to dwell in the house of the Lord all the days of my life, gazing on the beauty of the Lord and seeking him in his temple. जब कभी कोई विपत्ति मुझे घेरेगी, यहोवा मेरी रक्षा करेगा, वह मुझे अपने तंबू में छिपा लेगा। Then my head will be held high above my enemies around me. I will offer sacrifices in his tent with shouts of joy. I will sing music to the Lord. हे यहोवा मेरी पुकार सुन, मुझको उत्तर दे, मुझ पर दयालु रह। My heart says this about you, seek his face. Lord, I will seek your face. हे यहोवा अपना मुख अपने सेवक से मत मोड़, मेरी सहायता कर, मुझे तू मत ठुकरा।
मेरा त्याग मत कर, मेरे परमेश्वर तू मेरा उद्धार करता है। Even if my father and mother abandon me, the Lord cares for me. हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण मुझे अपना मार्ग सिखा, मुझे अच्छे कामों की शिक्षा दे। Do not give me over to the will of my foes, for false witnesses rise up against me, breathing violence. 13वीं और 14वीं पंक्ति 13 and 14 verses will read together, एक साथ पढ़ेंगे। मुझे भरोसा है कि मरने से पहले मैं सचमुच यहोवा की धार्मिकता देखूंगा। यहोवा से सहायता की बात जोते रहो, साहसी और दृढ़ बनो, यहोवा की सहायता की प्रतीक्षा करते रहो। प्रभु का धन्यवाद करें। लेट्स थैंक गॉड फॉर दिस ब्लेसेड पैसेज। यू ऑल मे बी सीटेड। I once again greet you all in the blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ। फिर से एक और बार आप सभी को अपनी वंदना पेश करता हूँ। खास तौर से 2 सप्ताह बाद फिर यहाँ पर प्रभु परमेश्वर ने एकत्रित होने के लिए हम सबको एक मौका दिया। ब्लूमिंगटन वाला फैसिलिटी आज अवेलेबल नहीं था, तो आज अपने को यहाँ हम सबको मेन कैंपस में इस प्रकार आने का एक जो अपॉर्चुनिटी विच गॉड प्रोवाइडेड, आई थैंक गॉड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। पिछले कुछ हफ्ते कई लोग बीमार थे एंड कई लोगों को चंगाई मिली। जॉर्ज अंकल, एलिजाबेथ आंटी सब बीमार थे। गॉड गिव देम गुड हेल्थ नाउ। मैं भी बीमार था। हमारे मेन कैंपस में भी आज काफ़ी कम लोग थे और परंतु आज काफ़ी हैं लोग। आई थैंक गॉड फॉर दैट। और ख़ास तौर से जोशुआ, कैथरीन आंटी, वो भी अगले महीने ट्रैवल करेंगे। लेट्स प्रे दैट गॉड विल बी विद देम। जमाइमा और कौसर आंटी नहीं आ पाए, जमाइमा का वर्क है। एडवर्ड अंकल भी खास तौर से कल प्रेयर मांगे, कोविड है उनको। सो लेट्स प्रे फॉर हिम एंड हिज फैमिली। एंड मैं खास तौर से प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि इस कैंपस में कुछ महीनों के बाद फिर से हम सबको यहाँ पर प्रभु ने मौका दिया कि हम सब आए और प्रभु की गुणगान करें। और ख़ास तौर से हमारे बीच इस बार स्टीफन भाई हैं, उनका पूरा परिवार है, उनकी मिसेस नुसरत है। वी वेलकम यू एंड आपसे बात करके और पिछले दिनों में जो संबंध रखा काफ़ी अच्छा लगा। एंड वी नो गॉड डज एवरीथिंग विद अ प्लान एंड गॉड हैज़ अ प्लान एंड पर्पस बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। समटाइम्स हमको लगता है जस्ट एक हमने सिर्फ मुलाकात किया, परंतु सबके बिहाइंड गॉड का एटर्नल प्लान्स होता है एंड थैंक गॉड फॉर दैट। आने वाले दिनों में प्रभु और हम सबको प्रभु में और बढ़ने को बल देगा एंड आई थैंक गॉड फॉर दैट। ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं। कुछ चीज़ें जस्ट मे बी 5-10 मिनट्स ओनली आई विल टेक। 5-10 मिनट ही लूँगा। भजन संहिता 27 की ओर अपने ध्यान को लाएंगे तो 2 चीज़ें वहाँ पर जो मुझे काफ़ी टच किया वो है कि वी हैव टू सीक गॉड एंड वेट फॉर हिम। प्रभु की खोज करें और प्रभु के लिए, प्रभु की सहायता की प्रतीक्षा करते रहें। तो हम कई बार काफ़ी प्रतीक्षाएं इधर उधर से हम रखते हैं, सामान्य है, मतलब इट्स वेरी नॉर्मल। हम इंसान हैं, हम सब इधर उधर सबसे सहायता रखते हैं। एक और मैं वर्स पढ़ना चाहूँगा, विलाप गीत उसके 3 अध्याय 25वां पंक्ति, लैमेंटेशंस चैप्टर 3 वर्स 25। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा उनके लिए उत्तम है जो उसकी बाट जोतता है। यहोवा उनके लिए उत्तम है जो उसकी खोज में रहा करते हैं। तो हम बाट भी जोते हैं और हम खोज भी करते हैं। कभी कभी परमेश्वर की बात जोते हैं, समटाइम्स वी वेट ऑन गॉड, प्रभु के लिए हम प्रतीक्षा करते हैं, और कभी कभी हम प्रभु की खोज भी करते हैं। बट आज के जो 5-10 मिनट में से मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हम इस दुनिया में तो कई सारी चीज़ों पे वेट करते हैं, वी सीक लॉट ऑफ थिंग्स एंड वी try to wait for many people or many opportunities, but that is all fine, वो सब अच्छी बात है। इस दुनिया में भी we have to, हमको कई सारे opportunities अगर है तो हमको we have to wait and we have to prepare ourselves, all that is good। but यहाँ पर जो दाऊद ये लिख रहा है उसका situation, most of the Bible scholars जो वेद के जो पंडित हैं वो कहते हैं कि एक ऐसा बैकग्राउंड था जब उसका खुद का बेटा अबशालोम उसके पीछे आ गया था। तो हम खास तौर से अपने जीवन में बच्चे सब होते हैं या फिर अपने रिलेटिव सब होते हैं, तो हमको लगता एक टाइम आ जाता है, हम देखते हैं हमारा बच्चा बड़ा होगा, वी पुट लॉट ऑफ होप इन देम, विच इज़ वेरी नॉर्मल। वो बहुत नॉर्मल है, मतलब कोई उसमें गलत भी नहीं है। परंतु क्या होता है, कभी कभी वो जब
बच्चे ही जब विरोध में आ जाते हैं, इन दिस केस ऑफ डेविड, हम में से किसी के साथ ऐसा हुआ नहीं है, बट डेविड का सिचुएशन वैसा था। ही एक्सपेक्टेड समथिंग में, जब बच्चे जब होते हैं तो कुछ तो एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ तो एक इच्छाएं मन में होती है, परंतु अबशालोम और उसके साथ जो मंत्री लोग थे उसके विरोध में आ गए। तब अब हम क्या करेंगे? समटाइम्स सिचुएशन हमारे लाइफ में आ जाएगा। अभी तो एवरीवन इज फाइन, सब कुछ है नहीं, सब अच्छे खुशी में है, परंतु व्हेन दीज टाइप ऑफ सिचुएशंस कम, दाऊद हमसे एक चीज कहता है, वी स्टिल हैव टू वेट ऑन गॉड। हमको परमेश्वर पे प्रतीक्षा रखकर परमेश्वर के ऊपर अपने परमेश्वर पे अपना भरोसा रखें और परमेश्वर पे वेट करते रहें, क्योंकि दाऊद ने ऐसा वेट किया और हम सबको भी वैसा ही वेट करना चाहिए। क्योंकि ऐसा इससे भी पहले कई बार इजरायलियों के साथ भी हुआ था। हम देखते हैं कि यिर्मयाह नबी की किताब उसके चैप्टर 29 29वें अध्याय उसके 13वें पंक्ति में और 10वें पंक्ति से हम जब देखते हैं तो इजराइल का एक डार्क फेज था, बहुत ही एक अंधकार वाला एक समय था, और वो बाबिलोन में सब वहां पर बंदी गृह में चले गए थे और उनका जो अवस्था था बहुत मुश्किल था। तो खास तौर से हमने भी कई लोगों पे ट्रस्ट किया होगा। पिछले हफ्ते भी हमारे वहां पे काम करने वाले कई सारे लोग 20 साल से 21 साल से नौकरी कर रहे थे, एकदम से हटा दिया। तो कभी कभी हमारे लाइफ में भी ऐसे सिचुएशंस जब आ जाते हैं तो हमको ही नहीं पता होता क्या करें, क्योंकि हम तो दुनिया इधर उधर ट्रस्ट करके रखते हैं, विच इज नॉर्मल, परंतु हमको एक चीज जगह पे हमने ट्रस्ट नहीं किया, वो प्रभु परमेश्वर पे, और परमेश्वर पे हम वेट करते रहे, प्रतीक्षा करें और परमेश्वर पे ही भरोसा रखें। क्योंकि अगर हम वहां परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे, इवन तो हमारे जीवन में कुछ ऊपर नीचे आएगा, परमेश्वर हमको पकड़ के उठाकर हमको परमेश्वर चलाएगा। यिर्मयाह नबी की किताब उसके 29वें अध्याय 10वें पंक्ति से हम पढ़ते हैं, वहां पर देखते हैं तो वो पूरे बाबिलोन में उनको कैद कर दिया था, पूरा उनका सिचुएशन बहुत ही मुश्किल वाला था। और वहां पर इस प्रकार प्रभु यिर्मयाह के द्वारा अपने लोगों से कहता है, यहोवा यूं कहता है कि बाबुल के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना ये मनभावना वचन है तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा, पूरा करूंगा। क्योंकि यहोवा की ये वाणी कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वह हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तो वी हैव टू ऑलवेज सीक गॉड। हमको परमेश्वर को देखना है और परमेश्वर के ऊपर प्रतीक्षा रखनी है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और साथ ही साथ सेकंड जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आए, आधे मन से नहीं कि ठीक है देखा जाएगा। हम लोग करते हैं ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ऐसा कहते हैं ना। तो लोग क्या करते हैं, ये भी स्टॉक ले लेते हैं, वो सब इधर उधर सब टाइप ले लेते हैं, थोड़ा रेसिडेंशियल बिजनेस भी, थोड़ा वो बिजनेस भी, सब कर देते हैं ताकि यहाँ पे घाटा हुआ तो वहाँ फायदा हो जाए। परमेश्वर ऐसा आधा अधूरा नहीं कहता। परमेश्वर कहता है तो पूरे मन से आओ। तुम 70 साल से फंसे होगे बाबिलोन में, 400 साल से मिस्र में फंसे होगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जो सिचुएशंस है या फिर आपका जो विषय है, 12 साल होगा, 15 साल होगा, 100 साल, कितना भी पुराना विषय हो, God is going to bring a change in that. That is the promise of God. यिर्मयाह नबी के थ्रू अपने लोगों को परमेश्वर ने यही वायदा दिया। चाहे हमारी अवस्थाएं या फिर सिचुएशंस में भी लॉन्ग, वही सिचुएशन में काफी महीनों से सालों से पड़े होंगे, परंतु परमेश्वर उसको झट से उसको पूरा कर सकता है, उसको सही कर सकता है, उसको एकदम करेक्ट कर सकता है। परंतु हम अपने पूरे संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आए। अगर नहीं भी किया, परमेश्वर ने सही भी नहीं किया, परंतु परमेश्वर अपने हमारे मन को अपने शांति से भरेगा ताकि हम वेट कर पाए, सो दैट वील बी एबल टू वेट फॉर गॉड्स राइट टाइम। सो ये परमेश्वर, यू कैन ट्रस्ट इन हिम, ही इज फेथफुल। एंड दाऊद भी वही कहना चाहता है। उसके आसपास उसके या तो उसके माता पिता भी छोड़ दें, उसके माता पिता ने भी त्याग दिया था बचपन में उसको, उसके भाई लोगों ने भी सब कर दिया था, परंतु दाऊद कहता है यू कम टू गॉड, गॉड विल हेल्प यू, गॉड विल स्ट्रेंथन यू। हमारा भी ऐसा ही भरोसा इन दिनों परमेश्वर में बना रहे, चाहे जो नो मैटर व्हाट सिचुएशंस कम। दैट्स व्हाई गॉड गिव अस अ कम्युनिटी, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे को बल और स्ट्रेंथ कर सकते हैं। क्योंकि मेरे जीवन में जो मैं यहाँ पे आके शेयर करूंगा आप सबसे, परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये कार्य किया, पर गॉड वाज विद मी, एंड उसे आप लोगों को बल होगा, यू विल बी स्ट्रेंथन, एंड आप लोग भी आके शेयर करेंगे। पिछले सप्ताह मेरे साथ ऐसे हुआ,
And God did this with me because I waited on God and I sought God's faith. That is why God has called us all for a fellowship. So आने वाले दिनों में हमारा जो भी trust है, let's put our trust and hope completely in God, and God will help us in all our ways. May God bless us all with these words. अभी के समय I would like to ask if anyone has any prayer request or anything to share. After that we'll be having our special songs by Stephen आएंगे, उसके बाद 2 गीत गाएंगे, and after that we'll be entering the main message. But उससे पहले कुछ टेस्टिमनी है, गवाही है. स्टीफन भाई, आपके जो रिलेटिव्स, फादर इन लॉ और आपके भाई के बारे में बोला था, इफ़ यू वांट टू शेयर एनीथिंग, इफ देयर इज एनी चेंज, वी आर कंटिन्यूइंग टू प्रे. और भी कुछ है तो दिस इज द टाइम टू शेयर. गिव मी योर माइक. If anyone wants to share. Good evening, everyone. Last time I requested to pray for my brother and my father-in-law. Father-in-law is doing good. My wife was telling that he is feeling better now. And my brother, his name is Edwin Javed. He still needs prayer. He has been fighting with the diabetes and is having the kidney issues. Remember him in your prayers and our family as well. Thank you. Sure, bhai. We'll be praying. Anyone else have any prayer request or any? Okay. If nothing else, then Ben, will you be able to, we'll be praying for this prayer matters, and Ben, if you can come forward, and so we'll be continuing to pray for Catherine auntie and Joshua. They will be traveling next month. Let's pray for Edward uncle. He's down with fever, and also especially pray for Brother Stephen's father-in-law. He has healing, but let's pray for his brother. He's having diabetic and other concerns. So, and also let's continue to pray for all those who are sick, and let's pray that God will continue to restore their health. Thank you, Jesus, for bringing us all here safely tonight, Lord. We thank you for all the blessings, Lord. And please just lift those up that are here present with us and guide us in your faith, Lord. We pray for those who are unable to be here tonight, such as Jemima and Kosser. And Lord, we really need your healing hand tonight, Lord, on those that are sick. There's plenty of people that are sick tonight, Lord, and we just ask for your healing powers, Lord. Lay your hand upon Edward Uncle, Lord. Heal him with his sickness, Lord, and we ask for healing prayers for George. Just surround us, Lord, with your love and peace. We pray for those traveling, Lord. We think of Catherine and Joshua. Just keep them safe. Protect them as they are abroad. Protect our friends and our family here and abroad, Lord. And we just ask for all your blessings, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Let's thank God for listening to our prayers. Now we'll be having Brother Stephen will be coming, and he'll be leading us in a time of praise and worship with his songs. May God bless us. So we will be singing Psalm 136. Shukr Yahweh Dai karo, karo Shukr Yahweh da.
शुक्र यहोवा दा ही करो करो शुक्र यहोवा दा शुक्र यहोवा दा ही करो करो शुक्र यहोवा दा शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदावां दा खुदा शुक्र करो ओदा जेड़ा है खुदावां दा खुदा क्यों जो ओहो भला हैगा रहमत ओदी है सदा क्यों जो भला हैगा रहमत ओदी है सदा शुक्र यहोवा दा ही करो करो शुक्र यहोवा दा वडे वडे काम जो करदा शुक्र करो तुसी उसे दा वडे वडे काम जो करदा शुक्र करो तुसी उसे दा जिसने है आसमान बनाए रहमत ओदी जिसने है आसमान बनाए रहमत ओदी है सदा शुक्र यहोवा दा ही करो करो शुक्र यहोवा दा जिस पानी ते धरती रखी शुक्र करो तुसी उसे दा जिस पानी ते धरती रखी शुक्र करो तुसी उसे दा नाले जिसने नूर बनाए रहमत ओदी सदा नाले जिसने नूर बनाए रहमत ओदी है सदा शुक्र यहोवा दा ही करो करो शुक्र यहोवा दा दिन दा पैरा सूरज करदा राती करदा चंद अदा दिन दा पहरा सूरज करदा राती करदा चंद अदा तारे चन नू साथी देते रहमत ओदी है सदा तारे चन नू साथी देते रहमत ओदी है सदा शुक्र यहोवा दा ही करो करो शुक्र यहोवा दा जिस पहलो मिस्र दे मारे चुक अपना हथ गज़ब दा जिस पहलोटे मिस्र दे मारे चुक अपना हथ गज़ब दा कड्डे मिस्रों इसराइली रहमत ओदी है सदा कड्डे मिस्रों इसराइली रहमत ओदी है सदा शुक्र
कुल जम दो ही से करके ले इसराइल पार लंघा, जिस कुल जम दो ही से करके ले इसराइल पार लंघा, और जिसने फिराउन नूरोड़े रहमते ओदी है सदा, और जिसने फिराउन नूरोड़े रहमते ओदी है सदा, शुक्र यहोवा थोड़ा बढ़ाइएगा। करो करो शुक्र यहोवा दा, शुक्र यहोवा दाई करो करो शुक्र यहोवा दा, करो शुक्र यहोवा दा, करो शुक्र यहोवा दा। And now we will be singing Psalm 92, तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा। तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा, तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा, मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा, मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा, तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा। देते वेले शफकत तेरी, बढ़ते वेले शफकत तेरी, रात वेले रहमत तेरी, रात वेले रहमत तेरी, करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा, मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना शुक्र खुदा। दस तारा एक साज बना के, दस तारा एक साज बना के, बीन बरबत खुश रंग सजा के, बीन बरबत खुश रंग बजा के, करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा, मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना शुक्र खुदा।
साज बजावा वे खुशी दे साज बजावा करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा मेरे रब आए हैं चंगी प्रीत करना शुक्र खुदा मेरे रब आए हैं चंगी प्रीत करना शुक्र खुदा तेरियां सीतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा कितने लोगों को अच्छा लगा गाना? गाना अच्छा लगा तो उनको भाई को थोड़ा थाली में बजाकर उनका धन्यवाद करें. Praise the Lord. धन्यवाद. Hallelujah. I want to thank God for this beautiful time God has given us to be in His presence. प्रभु के चरणों पर आज एक बार फिर से हमें आने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ. अगर यहाँ पे कोई थका हुआ है? Anybody tired? कोई थके हुए हैं यहाँ पर? चलो आप थके हो तो मैं एक बात बताता हूँ, ये मेरे लिए तीसरी बार है आज हमारा इंग्लिश सर्विस था, इंटरनेशनल सर्विस था, अब ये तीसरा सर्विस है. तो लेकिन जब खुदा के चरणों पर आते हैं तो एक खुशी है वो नो. इसलिए भजन संगीता में इस प्रकार बताता है कि बेटर इज वन डे इन योर कोर्ट्स देन थाउजेंड्स एल्सवेयर. एक दिन जो तेरे क्या बोलते हैं, कोर्ट्स को क्या बोलते हैं, तेरे हुजूरी में जो एक दिन है वो बाकी हजारों दिनों से भी उत्तम है. हालेलुया. मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ. एंड लेट्स कंटिन्यू टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड. अभी मैं परमेश्वर के वचन से कुछ बातें आपको याद दिलाने के बाद हम परमेश्वर की प्रभु भोज की सेवकाई में जाएंगे. विल गो इनटू द कम्युनियन सर्विस आफ्टर वी लिसन फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड. ब्रदर बिजू, इफ यू कैन हैव अ माइक्रोफोन बिकॉज I don't have the verses in Hindi. तो मुझे मदद करेंगे तो अच्छा होगा. Let's start by reading a verse from the Bible. James chapter 1 verses 22. याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 22 पद को हम पढ़ेंगे. James chapter 1 verses 22. Sorry, 22. 1:22. So it says, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourself. पढ़िएगा. परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं. वचन को क्या करने वाला बनो? वचन पर चलने वाले बनो. चलने वाले बनो, सुनने वाले अकेले नहीं. डोंट बी जस्ट हियरर्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड बट बी डूअर्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. पिछले बार जब मैंने हमारे MCA जो ब्लूमिंगटन में प्रचार किया था, आप लोगों को तो याद नहीं होगा लेकिन मुझे याद है. हमने ये कहा था कि बेनिफिट्स ऑफ ट्रायल्स, हमारे जीवन में जो परीक्षाएं आती है उसका लाभ क्या है, इसके बारे में हमने परमेश्वर के वचन से देखा था. आज मैं जो विषय आपको बताना चाहता हूं कुछ ही समय में प्रभु के बोझ में, बिफोर वी गो इनटू द लॉर्ड्स टेबल, आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट द रोल ऑफ ओबीडियंस इन फेथ लाइफ. विश्वास के जीवन में जो आज्ञाकारी बनने का जो जरूरत कितना ज्यादा है उसके बारे में कुछ बातें आपको याद दिलाना चाहता हूं. सबसे पहली बात, परमेश्वर का वचन इस प्रकार बताते हैं. याकूब ने पहले he was talking about trials and maturity. Now he comes to verse 13. He says, no one undergoing a trial should say, I am being tempted by God, since God is not tempted by evil and he himself does not tempt anybody. परमेश्वर किसी की क्या नहीं लेता? क्या नहीं लेता? परीक्षा नहीं लेता. बट वहां पर इस प्रकार बताते हैं कि परीक्षा में हम कैसे फंसते हैं. How do we get entangled in temptations? Jesus never said you will not have temptations in this world. Jesus never said you will not have troubles in this world. Jesus never said you will not have tribulations in this world. Jesus said in this world you will have tribulation. अब क्या दुनिया में आपको क्या है? क्लेश होगा.
परीक्षाएं आपके जीवन में आएंगे। एक ही जगह है जहां पर कोई परेशानी के बिना, बिना आंसू, बिना बीमारी, एक ही जगह है। वो कौन सा जगह है? क्या कोई बता सकते हैं कौन सी जगह है वो? हाँ, जहां हम जा रहे हैं। अभी वहां पे पहुंचे नहीं, अभी हम इस दुनिया में है। वी आर स्टिल इन दिस वर्ल्ड, but we are waiting to go there where there will be no tears, no pain, no sickness. Book of Revelation says that he will wipe away all the tears. But let's look at this fact about how do people fall, कैसे लोग गिर जाते हैं। When you read verse 14 onwards, 3 बातें मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे प्रभु की बोझ की सेवकाई में। 14 से इस पढ़िए, 14 वर्स 14 पढ़िएगा, हिंदी में पढ़िएगा। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर, कैसे? अपनी अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। परीक्षा में पड़ता है। कैसे पड़ता है परीक्षा में? अभिलाषाओं में खींचकर, फंसकर। Each person is tempted when he is drawn away and enticed by his own evil desires. उसके अंदर जो अभिलाषाएं हैं, जो चिंताएं हैं, जो विचारें हैं, वो क्या करता है? उसको फंसा देता है। उसके अंदर जो इविल डिजायर्स आता है। ठीक है, अगला पद भी पढ़िएगा, हमें थोड़ा सा और पता चलेगा इसका खतरा क्या है। व्हाट इज द डेंजर ऑफ दिस? यस। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। So abhilasha, when the desire is full grown, or it's conceived, what happens? Sin is, it gives birth to sin. जब अभिलाषा गर्भ होकर पाप को जनती है, and she gives birth to sin. And when sin is fully grown, it gives birth to मृत्यु, death. जब पाप बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है? मृत्यु को उत्पन्न करता है। मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो इसका मतलब हमें कहां पे, where do we need to put measures? हमें कहां पे ठीक करने की जरूरत है? Where do we need to fix things? Lot of people are trying to fix sin. Lot of people are trying to fix death. No, the real problem needs to be fixed on the root. And the root issue here is the desires. यहाँ पे असली समस्या क्या है? हमारे जो सोच विचार जो हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, जो अभिलाषाएं हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, right? The sinfulness, the sinful nature which is there. So, वो जो अभिलाषाएं, the desires is not taken control, then it will, what will it happen? It will produce sin, and then it will also result in death. So अभी सवाल ये है कि ये अभिलाषाओं के ऊपर कैसे काबू पा सकते हैं? How can we overcome these evil desires? I just want to say that the more we feed our flesh, the more the flesh will become strong. Right? मैंने कई आप लोगों को शायद हमारे बाइबल स्टडी चलते समय सिखाया होगा, बताया होगा वो जो बात है ना, जो अगर आपकी जो अंदर की इंसान जो आत्मिक मनुष्य है उसको आप आत्मिक वस्तुओं से को खिलाएंगे पिलाएंगे तो क्या होगा? वो आत्मिक मनुष्य क्या हो जाएगा? He will become strong. But अगर आप, if you are feeding your flesh, what will happen? Your flesh will become strong. So we have to be careful. Especially the world in which we live, there is lot of evil things going around. And it is very easy to be entangled, as the Bible says. लेकिन बाइबल हमें ये बताते हैं कि हमें क्या करना है, हमें चेतावनी के साथ जीवन बिताना है. We need to be careful as we lead our life in this world. Then, Bible further says, दूसरी बात मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूं कि बाइबल हमें यह सिखाते हैं कि हमें केवल सुनने वाला नहीं होना चाहिए, हमें करने वाला भी होना चाहिए, चलने वाला भी होना चाहिए. राइट?
वहां पे क्या लिखा है, मैं सारी बातों तो बताना नहीं चाहता, लेकिन उसके 22 पद में, इन वर्स 22 it says, be doers of the word and not hearers only, deceiving yourself. परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, हाँ, जो अपने आप को धोखा देते हैं। अगला पद भी पढ़िएगा। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक यस, मुंह दर्पण में देखता है, हाँ, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। So what does it say? You know, it is like a person looking into the mirror and he walks away and he forgets that how many of you know how you look like? कितने लोगों को मालूम है आप कैसे दिखते हैं? हाँ, सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ। How? Not a complicated. How many of you know how you look like? Yes. थोड़ा बहुत तो मालूम होगा ना। हमारा फोटो कहीं कोई दिखाएगा तो बोलेंगे हाँ ये मैं ही हूँ, बोल सकते हैं ना, इतना तो पता होगा, right? We can say okay, it's just me. But here it says, if you just listen to the word of God and do not do what the word of God says, then what happens? You're forgetting how you even looked. इसका मतलब क्या है कि what does it say is you need to follow the word of God. तो परमेश्वर का वचन अगर ये कहता है कि क्या कहता है कि आप दूसरों को क्षमा करो, तो क्या करना पड़ेगा? बताइए. What do you have to do if Bible says you have to forgive others? What you have to do? You have to forgive others. You know, I think it was today morning I was telling something, or I don't know where I was telling, but anyway, what I wanted to say is simply, many Christians think that when it comes to the obedience of the word of God, it is a choice. वो स्टारबक्स में जाते हैं ना, we go to the Starbucks, वो बड़ा सा बोर्ड, और या कोई भी दुकान में, आजकल तो इतना, कोई रेस्टोरेंट में जाएगा तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा मेन्यू पकड़ा देगा, कितना मेरे को तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है क्या खाए, अक्सर जाता नहीं हूँ. If you go anywhere, you will see a big list and you are confused. Then what will you do? You pick what you think is the best you like. Right? आपको जो अच्छा लगता है वो आप क्या करते हो? ले लेते हो. और जो अच्छा नहीं लगता वो आप उसको क्या करते हो? नहीं लेते. पर जब परमेश्वर का वचन के बारे में आते समय आपको ये मेन्यू नहीं है जो आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं. It's not like you can select something and you can reject something. No. It is a very serious matter. It is a very serious matter. और बाइबल में इस प्रकार बताते हैं कि अगर आप इसको आज्ञाकारी नहीं बनोगे तो बहुत ज़्यादा खतरा है हमारे जीवन में. If you do not follow the word, it is going to be a big problem. There are many places where it says. तो practically हमें क्या करना चाहिए? What do we need to do? When we read the Bible or when we are listening to the word of God, if God is telling us something from His word which we are not doing in our life, or we are doing something which the Bible says you should not do, what we need to do? We need to make a decision that I will align my life according to the word of God. हमें एक निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं अपने जीवन को क्या करूंगा? मोड़ूंगा. तो इसलिए वचन को सुनने से नहीं, हमारे जो कई लोग के अंदर एक विचार आ जाता है, चलो गिरजा जाने से, कलीसिया जाने से आशीष है. यस, आशीष है, लेकिन असली आशीष कब है? जब गिरजा में जाकर या कलीसिया में जाकर आप जो सुनते हैं उसके हिसाब से आप अपना जीवन को भी बिताते हैं. You know, many people think it is a blessing to go to church. Yes, it is a blessing. You know, you can go to church. There are a lot of blessings. But the true blessedness is when we not only go to church, but we also follow what we hear from the word of God. तो आज एक बात मैं आपको बताकर मैं यहाँ पर समाप्त करूँगा. उससे पहले, when God says, James is writing about obedience to the word of God, he continues. Read verse 25 also.
पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है. So one who looks intently into the perfect law of freedom and perseveres in it is not a forgettable hearer but a doer who works. This person will be blessed in what he does. What does it say? कौन आशीष पाएगा? अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको बता रहा था कि चर्च में आने से आशीष मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा आशीष कम मिलेगा करके बोला. जब आप when you follow, you know, you but it says a doer will be blessed in what he does. जो भी वो काम करता है उसमें आशीष मिलेगा. He will be blessed. Now, here he is telling about something very important. He says, if anyone thinks he is religious without controlling his tongue, his religion is useless and he deceives himself. पढ़िएगा 26 पद को. यदि कोई अपने आप को हाँ. क्या समझे? और को भक्त समझे, अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, हाँ, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है. तो वो क्या कर, इसका प्रॉब्लम क्या? व्हाट इज हिज प्रॉब्लम? ही कैन नॉट कंट्रोल हिज टंग. जीभ को वो क्या नहीं कर सकता? काबू में नहीं रख पाता. तो वो, if anybody thinks he is religious without controlling his tongue, his religion is useless and he deceives himself. अपने आप को धोखा देता है. तो इसका मतलब क्या है? कुछ लोगों को परमेश्वर ने बोलने का सामर्थ्य दिया है. कुछ भी बोल लेते हैं, कुछ भी. अगर आप कुछ भी बोलोगे तो क्या हो जाएगा? समस्या बहुत बड़ा खड़ा हो जाएगा. बड़ी बड़ी समस्याएं शुरू होती है एक छोटी सी बात पे. जो छोटी छोटी बातों को खींच खींच के लंबा करके बड़ी बड़ी बातें हो जाती है. नो, द सिंपल थिंग्स बिकम सो बिग. हाउ कैन वी रियली एक्सपीरियंस द फ्रीडम? when we start obeying the word of God. And the word of God says, how much religious you may be, but you need to have a control over your tongue. आपको अपने जुबान के ऊपर क्या लगाम रखना पड़ेगा. कई जगह पर आपको अपना मुंह चुप रखना पड़ेगा. क्यों रखना पड़ेगा? Why you have to keep your mouth quiet? Because नहीं तो वो आग की तरह फैल जाएगा, और फैल गया तो फिर बहुत परेशानी होगा. वो उसके बारे में भी उसका 3रा अध्याय, जो याकूब की पत्री 3रे अध्याय में याकूब ने यही बात कहा है कि बस आप अपना जो जीभ है, टंग है, इट्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी बट इट कैन क्रिएट ऑल द प्रॉब्लम. वो सारी समस्याओं को खड़ा कर सकता है. सो हियर इट सेज, इफ एनीबडी थिंक्स ही इज रिलीजियस विदाउट कंट्रोलिंग हिज टंग, his religion is useless and he deceives himself. फिर वो क्या बोलता है कि pure devotion and pure and undefiled religion before God the Father is this, to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself unstained from the world. पढ़िएगा उसका अगला पद भी पढ़िएगा. हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें. अपने आप को संसार से कलंक रखे. कई लोग कहेंगे, अरे भैया हम तो पैसा देते हैं जो ऑर्फन्स एंड विडोज को टेक केयर करने के लिए, थोड़ा बहुत चंदा इधर उधर. एक बात और भी वहां पर लिखा है. क्या लिखा है? there is one more thing which is mentioned. Keep oneself unstained from the world. क्या लिखा है? और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें. संसार से निष्कलंक रखे. निष्कलंक रखे इसका मतलब क्या है? Keep yourself pure. Keep yourself from getting stained from this world. दाग लगने से अपने आप को बचा कर रखना. दाग लगने से. कैसे दाग लगता है? कैसे दाग लगता है? मुझे मालूम नहीं कितने लोगों ने देखा है. मेरे there are places where there is lot of pollution. अगर आप दिल्ली में थोड़ा pollution का प्रॉब्लम है, तो उन दिनों में बताते थे कि अगर आप एक वाइट शर्ट पहन के मोटरसाइकिल में घूमने मतलब कहीं जा रहे हो, 1 घंटे बाद आओ, आपको वाइट शर्ट काला जाएगा.
दाग लग जाएगा, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, धुआं है बाहर. There is a lot of polluted air. So your white shirt will become a dark shirt by the time you come after 1 hour. क्योंकि जहां पर वातावरण में गंदगी है, वहां पर आप ज्यादा घूमोगे तो क्या हो जाएगा? गंदगी. अच्छा चलो, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बता देता हूं थोड़ी सी एक अगर हमारे घर में अगर कुकिंग हो रहा हो ना, चिकन वगैरह बना रहे हो, बहुत थोड़े टाइम के बाद कपड़ा बाहर होगा तो कपड़े में भी चिकन स्मेल आ जाएगा. देखा है कभी आपने? वो इसलिए है ना, यहाँ के लोग बोलते हैं ना कि ये करी स्मेल कर रहा है इसको. हमारा जैकेट वगैरह अगर क्लोसेट के बाहर डाल के अच्छा सा कुकिंग करके अगर वो पहन के जाएगा तो सारा जो लोग हमारे आसपास में आएंगे उन सबको पता लगेगा ये स्किन के घर में आज मटन बनाया, चिकन बनाया, क्या बनाया. क्योंकि जो उसका जो स्मेल है वो उसके ऊपर इट कैचेस. सेम वे, ओके, वो तो चलो ठीक है, ड्राई क्लीनिंग कर लेना, कुछ करके आप उसको ओवरकम कर लोगे. लेकिन हमारी जो आत्मिक जीवन में, इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ, वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर नॉट गेटिंग स्टेन्ड. भाई वहां पे क्या वो शब्द, क्या लफ्ज क्या लिखा है? आप अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें. तो मतलब कलंक लगने का संभावना बहुत ज्यादा है, कलंक लगने का, क्योंकि ये दुनिया पाप में फंसी हुई है. तो अभी सवाल ये, आप अपने आप को शुद्ध रख सकते हैं? तो बाइबल बताता है कि एक नौजवान, हाउ कैन अ यंग पर्सन कीप हिज वेज प्योर? टेल मी द आंसर. कैसे? हाउ कैन ही कीप हिज वेज प्योर? बाय फॉलोइंग द वर्ड. Psalms 119. By following your word, your path. परमेश्वर का वचन का पालन करने से, वचन को समझने से, ध्यान करने से ही हम अपने जीवन को क्या कर सकते हैं? शुद्ध रख सकते हैं. तो इस शाम के समय में आपको यह बताना चाहता हूं, ये दुनिया में बहुत सारा पोल्यूशन है, बहुत सारे पोल्यूशन. इट्स अ करप्टेड वर्ल्ड इन मेनी वेज. एक ही बात को दो लोग दो रीति से बताएंगे, राइट? मैं कई बार ऐसा कहता हूं कि आई से दिस मेनी टाइम्स दैट इफ देयर इज एन इंसिडेंट व्हिच हैपेंस, अगर आप दो वेबसाइट में जाके उसी इंसिडेंट के बारे में पढ़ोगे तो आपको दो डिफरेंट आइडिया मिलेगा उसके बारे में, क्योंकि ये गुमराह करने के लिए दुनिया में लोग ऐसे ऐसे ही लिख देते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं. आप अपने शब्दों के द्वारा किसी को भी कुछ भी कर सकते हो. एक बार एक जगह पर एक इंसिडेंट हुआ. एक भाई ने एक परमेश्वर के दास से कहा कि पास्टर जी मुझे थोड़ा सामान खरीदना है, आप थोड़ा राइड दे सकते हैं क्या? यहाँ नहीं हुआ, कहीं और कहीं हुआ. तो बोला हाँ, पास्टर बोला हाँ मैं आपको ले जाता हूँ. तो वो दुकान के सामने पहुंच गया, तो वो दुकान के सामने कोई पार्किंग लॉट नहीं था, पार्किंग नहीं मिला. They didn't get a parking. तो वो भाई बोला पास्टर आप गाड़ी में बैठे, उतरने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी से वो सामान लेकर बाहर आता हूँ, आप रुकिए. तो देन पास्टर ने देखा तो यहाँ पे कोई पार्किंग लॉट ही नहीं है. तो फिर वो देखा वो दूसरी जगह पर एक पार्किंग का लॉट मिला, एक पार्किंग था, स्पेस था. सो ही वेंट एंड पार्क देयर, राइट? उसने पार्क किया. तो थोड़े समय बाद वो भाई निकल आया, ये जाकर उनको लेके वापस घर छोड़ा और पास्टर चले गए. कुछ दिनों के बाद कोई आके बोला वो पास्टर है ना, वो दारू के अड्डे के सामने मिला. He was found in front of a liquor shop. ये कैसे मिला? हुआ ये, समझ रहे हो ना, हुआ ये है कि जो पार्किंग नहीं मिला था, तो वो पास्टर ने जो पार्किंग किया था उसके सामने जो दुकान था वो शराब की दुकान थी. तो वो वहां से कोई और निकला, उसने कुछ नहीं सोचा, उसने सोचा अच्छा ये भाई क्या कहां पर है, इसके सामने, इसका मतलब क्या है. उसके बाद उसने तो लंबी चौड़ी कहानी बना ली. तो मैंने तो देखा था वो अंदर जाके बोतल लेकर बाहर आया, बड़ी बड़ी कहानियां बना दिया. मेनी टाइम्स यू नो
people can say a lot of things and create trouble for you. मतलब ये मेरे एक उदाहरण दे रहा था. एक्चुअल में क्या है, सच्चाई क्या है, उसने गाड़ी वहां पर पार्क किया है. वो किसी भी कारण पार्क कर सकता है, लेकिन जिसने ये बात बताया उसने उसमें थोड़ा और मिर्च मसाला डाल के अच्छा से उसको, he made it very flavored story so that he understood that okay, this is going to be bigger. It's going to be bigger. What I'm trying to say is we need to be very careful. We need to be very careful. We need to keep control over our tongue. जो बात आपने नहीं देखा कभी भी हमें नहीं बोलना चाहिए. हमारे इमेजिनेशन में जो बातें आती है ना, the things which comes in our imagination, we should not say those things as facts. And then जैसे हमने पढ़ा, जो 3 बातें मैंने ये आपको आज शाम को ये बताया. सबसे पहली बात क्या था, हमें अपने आप को दुनिया की अभिलाषाओं से, हमारे जो अंदर जो evil desires which comes, we need to protect ourselves from those things so that it doesn't give birth to sin, and sin when it is full grown, it gives death. Then we also looked at the fact that we should not be just be hearers of the word of God. हम सिर्फ खुदा का कलाम सुनने वाले नहीं, लेकिन उसको आज्ञा मानने वाले होना चाहिए. क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऑप्शन नहीं दिया, अच्छा ये मुझे अच्छा लगा मैं ये ले लूंगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगा मैं ये नहीं लूंगा. This I liked, I will take it. This I did not like, so I did not take. No. The Bible says you have to take seriously everything God has said. जो भी परमेश्वर ने कहा उसको आपको seriously लेना पड़ेगा. And the last thing, control your tongue. क्या है, आपको अपने जीभ के ऊपर लगाम रखना है. क्योंकि अगर आप लगाम नहीं रखते तो परमेश्वर का वचन, द बाइबल सेज योर रिलीजियस एक्सपीरियंस और आप जो भी है ना वो यूजलेस है. और फिर वो क्या कहता है कि तुम्हें you have to take care, you have to care for the orphans and the widows, but then also it says you need to keep yourself unstained in this world. क्या है, कलंक ना लगाए हुआ. मैं अक्सर वाइट शर्ट पसंद करता हूँ संडे वगैरह पहनने के लिए. एक बार कहीं खाने के लिए गया तो वाइट शर्ट पहना था, तो जो curry fell on the shirt, तो it's a stain. So stain लगने के बाद what will you do? You will wash it, and sometimes it won't be good just to washing. You have to do some stain remover. This evening, as we are coming to the Lord's table, परमेश्वर का भोज के सामने आते समय बताना चाहता हूं कि the blood of Jesus cleanses us from all stains. प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हर गुनाह से क्या करता है, शुद्ध करता है. It cleanses us. It purifies us. It removes, वो क्या है, हर एक जो कलंक है उसको रिमूव करता है. Take it out. मैं अभी एक बात बताता हूं, उसके बाद हम प्रभु के भोज में जाएंगे. We'll go into the how does Jesus work in our life? अभी यहाँ पे तो wound थोड़ा कम होता है. पहले हमारे when we were small गिर जाते थे, बच्चे गिर जाते थे, उनका वहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, चोट लग जाती थी ना. तो फिर वो कई बार क्या होता है कि वो ध्यान नहीं लेंगे तो उसमें वो थोड़ा सा what do you call इन्फेक्शन हो जाता है, पस आ जाता था. तो अगर आप उसके ऊपर ही बैंडेड लगाओगे तो क्या होगा? If you put a band-aid on it, what will happen? The infection will continue to grow and it will become worse. फिर आप हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने क्या किया, आपका टांग को पकड़ के उन्होंने सारा जो गंदगी था उसको बाहर निकाल कर मेडिसिन लगा कर दे बाइंड यू ना, उसका बांध के देते हैं. बड़ा दर्द होता है, बड़ा दर्द होता है उस समय. लेकिन एक बात याद रखना, थोड़ी सी दर्द हुआ तो भी बाद में क्या वो ठीक हो जाएगा. There is a simple way. दर्द ना होने के लिए एक साधारण सा रास्ता है. वो क्या है, ऊपर बैंडेड लगा दो या बैंडेज लगा के भेज दो, कोई दर्द नहीं होगा उस समय, राइट.
लेकिन वो आपके समस्या का हल नहीं होगा. That's not a solution to your problem. The solution to the problem is a complete cleansing. And then, so what Jesus does, he doesn't just put something over the stains. He removes the stains. वो क्या है? हमारे हर जो दाग है उसको मिटाता है. He takes away. हमारे कलिसिया में जो 2 ऑर्डिनेंसेस है, आप लोग कभी हमारे हर महीने में प्रभु का बोझ का सेवकाई होता है. एवरी मंथ वी हैव द कम्युनियन सर्विस. सो लेट मी जस्ट टेल यू समथिंग. वी हैव 2 ऑर्डिनेंसेस, वाटर बैप्टिज्म एंड द कम्युनियन. जो है परमेश्वर का प्रभु बोझ और पानी का जो बपतिस्मा, ये जो 2 सर्विस हम यहाँ पर करते हैं. तो जो प्रभु का बोझ के बारे में आते समय, व्हेन वी कम टू द कम्युनियन, I want to tell you that you should have accepted Jesus Christ as your personal savior. आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया होना चाहिए. कई लोग कलीसिया में जाते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण नहीं किया, तो वो उनके बारे में नहीं बोल रहा हूं. But you should have accepted Jesus Christ as your person. Number 2, you should have followed the commandment of Jesus by taking water baptism. आपने प्रभु की आज्ञा को मानकर बपतिस्मा लिया होना चाहिए, पानी में बपतिस्मा. आप प्रभु के साथ एक अच्छा संबंध में जीवन बिताने का अनुभव होना चाहिए. यू शुड बी हैविंग ए क्लोजर होली लाइफ इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड. इसका मतलब क्या है? एवरी डे यू आर वॉकिंग विद जीसस. हर रोज आप खुदा के साथ, सिर्फ चर्च में आते टाइम नहीं, सिर्फ गीत गाते समय नहीं, नौकरी के स्थान में भी, हर जगह पर आप अपना भरोसा खुदावन के ऊपर रख रहे हैं. यू आर पुटिंग योर ट्रस्ट अपॉन गॉड इन एवरी सिचुएशन. वी टेक कम्युनियन वेरी सीरियसली. इसलिए हम लोग परमेश्वर का वचन प्रचार करने के बाद ही कम्युनियन का सेवकाई करते हैं. क्यों मालूम है? हमें ये लगता है कि वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हेन वी कम टू द कम्युनियन, बिकॉज दैट्स द बाइबल सेज. हम पढ़ेंगे कुछ वचन. 1 कुरिन्थियों की पत्री उसके 11 अध्याय उसके 27 पद से जब पढ़ते समय, व्हेन वी रीड फ्रॉम 1 Corinthians chapter 11 27 onwards, पढ़िएगा भाई. इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा. इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच कर और let a man or a person examine himself. Yes. और इसी रीति से इस रोटी में से खाएं और इस कटोरे में से पिएं. आगे. क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, those who do not recognize the body of Christ when they eat and drink, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है. हाँ. इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए. Many of you are sick and ill among you, and many have fallen asleep. इसलिए जब हम प्रभु के बोझ के पास आते हैं, when we come to the Lord's table, we need to examine ourselves. It's a time of reflection. हमने अपने आप को जांचने का एक समय है. आइए हम अपने आंखों को बंद करें. Let's close our eyes. मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में कुछ समय ले और प्रभु के बारे में सोचें. Think about what Christ has done. What Christ has done. सारे आंखों को बंद करें. अभी कुछ ही समय में जब प्रभु की बोझ की सेवकाई यहाँ पर होते समय हम क्या करेंगे कि आप अगर प्रभु के बोझ की सेवकाई में भाग लेना चाहते तो आप उस समय खड़े होएंगे. मैं आई विल टेल यू, एंड इफ यू आर गोइंग टू टेक पार्ट इन द लॉर्ड्स कम्युनियन टेबल, यू कैन स्टैंड अप एट दैट टाइम. हालेलुया. एक क्षण अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करें. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया.
जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। कितने लोग आज कहेंगे वाकई में जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया? From the time Jesus came into my life has been transformed. I request brother Pastor Biju to come forward. He's going to help me in this service. Let's pray. Heavenly Father, as we are coming closer to the communion service, we pray that your blessings will continue to be there upon us. You bless us this evening. आप और बरकत दे, तेरी रहमत और तेरी बरकत को हम महसूस कर पाए. Thank you for blessing us in Jesus' name we pray. Amen. यदि आप प्रभु के बोझ में भागी लेने के लिए तैयारी के साथ है तो आप देर कृपया खड़े हो जाएं. If you are in the presence of the Lord, prepared to take part in the Lord's table, please stand up. Hallelujah, hallelujah. Bible says, जिस रात को प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया, यीशु ने रोटी अपने हाथ में लेकर धन्यवाद करने के बाद उसको तोड़कर अपने चेलों को ये कहकर दिया, ये मेरी शरीर है, ये मेरी याद में किया करो. Do this in remembrance of me. This is my body which was broken for you. Hallelujah. Let us thank the Lord for this bread. Amen. Gracious Heavenly Father, we thank you as we will be breaking this bread very soon. We pray that you will bless it and give to us. We thank you because you paid the price for us. Thank you for helping us. And once again come together as a body of Christ and take part in the communion. We pray that it will be a blessing. You bless it and give to us. In Jesus' name we pray. Amen. Let us break this bread with thankfulness in our hearts. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद खुदा. Hallelujah. प्रभु जिस प्रकार से ये रोटी इस पर या समय पर तोड़ा जा रहा है, प्रभु आपने अपना जान हमारे लिए हालेलुया दिया. धन्यवाद खुदा. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. अगर आपके जब आप इंतजार कर सकते थे तो इंतजार कीजिए, हम इकट्ठे इसमें से भाग लेंगे. Jesus Christ, I think about your sacrifice. You became nothing, poured out to death. Many times I wondered at your gift of life. I'm in that place once again. I'm in that place once again. Once again I look upon the cross where you died. I'm humbled by your mercy and I'm broken inside. Once again I thank you. Once again I pour out my life. Once again I thank you. Once again pour out my life. Now you are exalted to the highest place. From where one day I'll bow, but for now I marvel at your saving grace. I'm in that place once again. I'm in that place once again.
Thank you, Jesus. धन्यवाद करें प्रभु को. Hallelujah. After the supper, he took, after the giving the bread, he took the cup. Yes. He said, this cup is a new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. Please pray for this. प्रेमी प्यारे परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर. परमेश्वर इस कटोरे की ओर परमेश्वर हम जब आते हैं परमेश्वर, ये वो दर्शाता है जो यीशु मसीह ने अपने खून को बहाया सलीब पर हमारे गुनाहों के लिए. परमेश्वर इस समय हम जब इस कटोरे में से भाग लेंगे परमेश्वर एक आशीष का कारण बन पाए. यू ब्लेसेड फादर एंड नॉट अ रीजन, लॉर्ड फादर ऑफ जजमेंट. फादर वी once again thank you for what your son did on the cross for us to establish a new covenant for us. Once again Father, we thank you for everything. परमेश्वर इस परमेश्वर कटोरे को तो आशीष करें. जिस मैंने प्रे आमीन. As this cup comes, please wait if you can wait so that we can take part in it together. Amen. सारे पाप और दाग मिटाकर मुझे मुक्ति देने के लिए, सारे पाप और दाग मिटाकर मुक्ति देने के लिए, मुक्तिदाता ने बहाया खून अपना क्रूस से, मुक्तिदाता ने बहाया खून अपना क्रूस से. खून के प्यासे बेड़ियों ने आकर घेरा यीशु को, खून के प्यासे बेड़ियों ने आके घेरा यीशु को. मारे कोड़े ठुकी कीले धारा निकली जख्मों से, मारे कोड़े ठोकी कीले धारा निकली जख्मों से. सारे पाप और दाग मिटाकर मुझे मुक्ति के लिए, सारे पाप और दाग मिटाकर मुक्ति देने के लिए, मुक्तिदाता ने बहाया खून अपना उस पर. If you have not taken part, let's take part in it together. Thank you, Lord Jesus. Let's pray. Let's pray in the presence of the Lord. Hallelujah. Let's take a moment to thank the Lord that He has given us this opportunity to take part in the communion this evening. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Can we open up our mouth and हम खुदा को धन्यवाद करें? मुंह खोल कर प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. हालेलुया. कितना महान अवसर परमेश्वर ने दिया. पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए. प्रभु एक बार फिर से इस दुनिया में रहते समय आपके भोज में भाग लेने के लिए प्रभु आपने मदद की. अभी तक आप आए नहीं, आप आने वाले हैं. Let us pray that in the coming days many more will come and join us as part of this fellowship, and many more will be joining us and taking part in the communion along with us. Why don't we pray for that? Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, because you are going to do that. Amen. Amen. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. At this time, I want to just sing a song of hope. Hallelujah. I don't know how many of you know this song, but it's a very beautiful song of hope. Hallelujah, which says, हम खुशी मनाएंगे. When we go to heaven, there will be a lot of joy. Hallelujah. Amen. आ रहा है यीशु बादल पर अपनी दुल्हन को ले जाने को. आ रहा है यीशु बादल पर अपनी दुल्हन को ले जाने को. फरिश्तों का शोर नरसिंगा का भी बहुत जल्दी देगा सुना. फरिश्तों का शोर नरसिंगा का भी
बहुत जल्दी देगा सुनार। खुशी मनाएंगे हम, खुशी मनाएंगे हम, सारे दुख मुसीबत होएंगे खत्म, क्योंकि उसके साथ साथ हम सब शामिल होएंगे। हालेलुया सदा गाएंगे, क्योंकि उसके साथ साथ हम सब शामिल होएंगे। या सदा गाएंगे, मसीह में जो मुए जाएंगे, सुनकर आवाज नरसिंगा की, उनके साथ हम भी पाकर तब्दीली हवा में यीशु से मिलेंगे। उनके साथ हम भी पाकर तब्दीली हवा में यीशु से मिलेंगे। ओ खुशी मनाएंगे हम, आमीन। सारे दुख मुसीबत होएंगे खत्म, क्योंकि उसके साथ साथ हम सब शामिल होएंगे। ओ उसके साथ साथ हम सब शामिल होएंगे, सदा गाएंगे तो ये बातें दे। Let me sing in Malayalam. ഏറെ നാളായി കാണാൻ ആശയാൽ കാത്തിരുന്ന എൻ്റെ പ്രിയനെ, ഏറെ നാളായി കാണാൻ ആശയാൽ കാത്തിരുന്ന എൻ്റെ പ്രിയനെ, തേജസ്സോടെ ഞാൻ കാണുന്ന നേരം തിരുമാറോടണഞ്ഞിടുമേ, തേജസ്സോടെ ഞാൻ കാണുന്ന നേരം തിരുമാറോടണഞ്ഞിടുമേ। ओ खुशी मनाएंगे हम, सारे दुख मुसीबत होएंगे खत्म, क्योंकि उसके साथ साथ हम सब शामिल होएंगे। हालेलुया, ओ क्योंकि उसके साथ साथ होएंगे। हालेलुया सदा गाएंगे। आ रहा है यीशु बादल पर अपनी दुल्हन को ले जाने को, आ रहा है यीशु बादल पर अपनी दुल्हन को ले जाने को। फरिश्तों का शोर नरसिंगा का भी बहुत जल्दी देगा सुना, फरिश्तों का शोर नरसिंगा का भी बहुत जल्दी देगा सुना। ओ खुशी मनाएंगे हम, सारे दुख मुसीबत हमें, क्योंकि उसके साथ साथ हालेलुया सदा गाएंगे, क्योंकि उसके हम सब शामिल होंगे। आमीन, क्योंकि उसके साथ साथ हम सब शामिल होंगे। हालेलुया सदा गाएंगे। हालेलुया। कितने लोग खुश है खुदावंद के चरणों पर? हालेलुया। अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए हालेलुया हमारा खुदावंद आने वाला है। आमीन। हालेलुया। बहुत जल्दी देगा सुनाई। हालेलुया। What a hope we have. The bridegroom is going to come to take the bride. Who is the bride? Bride is the church. उसकी कलीसिया उसकी दुल्हन है। हालेलुया। आप सब बैठ जाइए। Praise God. हालेलुया। अभी मेलोडी, you want to come forward? उसके बाद हमारे पास्टर बिजू will take forward from there. आप सबको प्रभु आशीष और बरकत दे। Come fast. Yeah, give her the setup. Okay. Melody is going to sing a song for us, and after that, yeah, you want everybody to stand up? Sing. Okay, yeah, everybody can sing. She's just going to lead, okay? So you all can sing. We all will sing together with her. We'll be singing Come Thou Fount. It's a congregational hymn. Everyone can sing.
Thank you, Melody. God bless you. Now I would like to invite Brother Stephen. He'll be praying and Pastor will do the benediction after that. हम सब अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद की हजूरी को महसूस करते हुए अपने सरों को झुकाएं। अजीम मसीह खुदाए कादर अब्दियत के बाप सलामती के शहजादे तुझे था जो है जो आने वाला है, तेरा ही नाम हम दोस्ताइश के लायक है प्यारे खुदावंद। हम किसके पास जाएं? जिंदगी की तमाम नेमतें, बरकतें, बख्शिशें उसी ज़ाते अक़दस की तरफ से आती हैं। जैसे कलाम हयात अब्दी में मरकूम है कि जहां दो या दो से ज्यादा मेरे नाम पे इकट्ठे होंगे तो मैं उनके दरमियान में होऊंगा। सो खुदावंद आज हमारा ईमान, हमारा तवक्कुल, हमारा यकीन है कि तू हमारे दरमियान में मौजूद है। दुआ करता हूँ प्यारे खुदावंद जितनी भी फैमिलीज यहाँ पर इकट्ठी हैं, जितने हमें सुनते हैं, देखते हैं, ऑनलाइन प्यारे खुदावंद ज्वाइन करते हैं, यसुब आप उन सब के साथ में होना। हर एक को नाम ब नाम बड़ी बरकत है, उनको घरानों को ब्लेस कर। जैसे कलाम हयात अब्दी ज़बूर 91 वर्स 11 में प्यारे खुदावंद तूने वादा फरमाया कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, तेरी सब राहों में हिफाजत करें, वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। सो प्यारे खुदावंद हमारा यकीन है, हमारा ईमान है कि हमारे रास्तों की मुहाफ़ज़त करने वाला तू जलाली बाप है। प्यारे खुदावंद जैसे तेरे कलाम में है कि तू जो हक ताला के पर्दा में रहता है, कादर मुतले के साए में सुकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल है, क्योंकि तुझे सियाद के फंदे से और हर मोहलिक वबा से छुड़ाएगा। तुझे अपने परों में छुपा लेगा, तुझे उसके बाजू के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है, तू न रात की हैबत से डरेगा, न दिन को उड़ने वाले तीर से, न उसको हलाकत से जो दोपहर को वरान करती है। सो खुदावंद हमारा ईमान है, हमारा यकीन है कि तू शैतान के फंदों से और बुराई की लानतों से, बदी की प्यारे खुदावंद गंदी कुफ्तों से हम लोगों को, हमारे लोगों को, अपने प्यारों को बचाने वाला अब्दी जलाली बाप है। प्यारे खुदावंद जिस तरह से आज के कलाम में हमने सुना कि प्यारे खुदावंद तेरे बंदा ने ये हम सब तक पहुंचाया, तेरे कलाम की बातें, कि ना सिर्फ हम सुने पर उस पर अमल करने वाले भी बने। सो खुदावंद आज हम इस ईमान के साथ इकट्ठे होते हैं कि हम तेरे कलाम की बातों पर अमल करने वाले और प्यारे खुदावंद उसकी तेरी राहों पर चलने वाले बने। और दुआ करता हूँ प्यारे खुदावंद हमारी ये मुख्तसर सी जिंदगानियाँ कलाम हयात अब्दी का अक्स बन जाए और हमारी जिंदगियों में नजर आए कि हम खुदा के सच्चे पैरोकार हैं। प्यारे खुदावंद अपनी जिंदगी की गवाही के लिए जब प्यारे खुदावंद तू हमें उस दलदल से, प्यारे खुदावंद उस बुराई से और उस प्यारे खुदावंद खौफ खतरे से निकाल के लाया, और प्यारे खुदावंद जब हमारे प्यारे खुदावंद फैमिली में और हमारे घरानों में प्यारे खुदावंद तेरी बरकत देखता हूँ तो प्यारे खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ। इसी तरह से नाम ब नाम बरकत दे उन घरानों के लिए जो यहाँ पे मौजूद हैं, पास्टर साहब और उनकी फैमिली के लिए, बिजू भाई और उनके प्यारे खुदावंद फैमिली, और जितने भी हमारे दूसरी सारी फैमिलीज जहाँ पे मौजूद हैं, जिनके प्यारे खुदावंद मैं नाम नहीं जानता, पर तेरे हाथों में प्यारे खुदावंद, तेरे जहन में और तेरी बातों में प्यारे खुदावंद, तेरे कलाम की बातों में हम उन सब को रखते हैं ताकि प्यारे खुदावंद तेरे नाम का मसा हो और तेरी बरकत चाहता हूँ। पाक रूह का मसा, ईमान की मजबूती और पाक रूह की मामूरी हम सब पर और जब तक प्यारे खुदावंद ये रहती दुनिया है, जैसे कलाम हयात अब्दी में है कि ये आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें नहीं टलेंगी। सो प्यारे खुदावंद आज हम इस यकीन के साथ प्यारे खुदावंद यहाँ से जाते हैं कि तू हमारी ज़िंदगियों में बरकत साबित होता है और बरकत देने वाला अब्दी जलाली बाप है। मांगते हैं और पा लेते हैं मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, Amen. Amen. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father and fellowship of the Holy Spirit be with us all from now and forever. Amen. Amen. 3 बार हालेलुया बोल सकते हैं? हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आप सबको आशीष और बरकत दे।